صورتیں نہ جانے کس دیس بستی ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ آداب ناظرین، آج ذکر حیات اللہ انصاری کا، جو ایک صحافی تھے اور جنہوں نے اپنے ہی منفرد انداز میں جدوجہد آزادی میں حصہ لیا۔ آپ اخبار ہندوستان کے مدیر تھے اور جب 1942 میں اخباروں پر انگریز حکومت نے پابندی لگائی تو آپ کا اخبار بھی بند ہو گیا۔ ایسے میں جدوجہد آزادی میں حصہ لینے کے لیے آپ نے ایک انوکھا طریقہ نکالا۔ آپ ایک بلیٹن تیار کرتے تھے جس میں انگریزوں کے ظلموں کی داستان بیان کی جاتی تھی، اور پھر اس بلیٹن کو وہ اپنے اسکوٹر کی ڈگی میں رکھتے تھے، اور پھر اس اسکوٹر کے ساتھ وہ ممبئی میں مختلف مقامات پر جاتے تھے اور اس کو بجایا کرتے تھے۔ اس کارکردگی میں آپ کے ساتھ مشہور فلم ڈائریکٹر چیتن آنند بھی ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان دونوں نے مل کر اپنے اسکوٹر کو ایک چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن بنا دیا تھا۔ یہ ریڈیو بلیٹن بامبے میں 1942 سے آزادی حاصل ہونے سے کچھ پہلے تک چوری چھپے نشر کیا جاتا رہا، لیکن پولیس آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوششوں کے باوجود ناکام رہی۔ آج ہم بات کریں گے مشہور صحافی، افسانہ اور ناول نگار، ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی جناب حیات اللہ انصاری کی۔ آپ وہ کانگریسی رہنما ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ ایک ہی شخصیت بیک وقت گوناگوں صفات کی مالک کیسے ہو سکتی ہے۔ حیات اللہ انصاری نے ہندوستان اور قومی آواز میں اپنے اداریوں اور مضامین کے توسط سے ملک کے مسلمانوں میں جنگ آزادی کی جوت کو نہ صرف جلایا بلکہ اس تحریک میں مسلمانوں کو کود پڑنے کی تلقین کی۔ یہ اخبار جب نکلا اس وقت مسلم لیگ کی تحریک، جو بعد میں تقسیم وطن کی تحریک بن گئی تھی، نئی کروٹ لے رہی تھی۔ یہ اخبار اس تحریک کی سرگرم مخالفت کر رہا تھا۔ آپ ہندوستان اور قومی آواز کے علاوہ کانگریسی ہفتہ روزہ سب ساتھ کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ آپ کے مضمون اور اداریوں کے بنیادی مدعے جمہوریت، سیکولرزم اور سوشلزم کے گرد طواف کرتے تھے۔ آپ نے لکھا، علی گڑھ میں میرا رجحان کمیونزم کی طرف ہو گیا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ 15 سال کی کشمکش کے بعد کمیونزم کے اثرات سے نکل سکا۔ آپ نے اپنے اداریوں اور مضمون میں افسانے کی زبان استعمال کی۔ 1922 میں حیات اللہ انصاری کا داخلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا۔ اس زمانے میں اس یونیورسٹی میں طلباء کو سیاست سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی۔ اس کے باوجود تحریک آزادی گرم ہوا کی طرح متفکر ذہنوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہی تھی۔ ایسے میں جناب حیات اللہ انصاری اس کے اثر سے کیسے بچ سکتے تھے؟ آپ نے باقاعدہ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، اور جب پنڈت جواہر لال نہرو علی گڑھ آئے تو جن طالب علم لیڈروں نے ان کے استقبال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں حیات اللہ انصاری کا نام سر فہرست تھا۔ دراصل پنڈت نہرو کو پہلی بار علی گڑھ لا کر تقریر کروانے والے حیات اللہ انصاری ہی تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے اپنی قربت کا ذکر کرتے ہوئے حیات اللہ انصاری لکھتے ہیں، قدیم دور میں فرنگی محل مذہبی تحریکوں کا مرکز رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں سیاست کا دور بھی آ گیا، اور وہ لائے جواہر لال جی۔ جب تحریک آزادی نے زور پکڑا اور بھارت چھوڑو تحریک پورے ملک میں پھیل گئی تو برٹش حکومت نے اور بھی سخت رویہ اپنایا، جس کے نتیجے میں کانگریس کے تقریباً تمام بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور اس تحریک کی حمایت کرنے والے اخبارات بھی بند کر دیے گئے۔ حیات اللہ انصاری کی باغیانہ تحریروں اور اداریوں کے سبب
हिंदुस्तान भी बंद कर दिया गया। इसके बाद आपने इशरत अली सिद्दीकी, मोहम्मद हसन क़िदवाई और अब्दुल मुजीब सहालवी के साथ मिलकर बारादरी कैसरबाग लखनऊ से एक और हुर्रियत पसंद अखबार निकालने की स्कीम बनाना शुरू की। लेकिन अंग्रेज हुकूमत को इस स्कीम की भनक लग गई और हयातुल्ला अंसारी और उनके साथियों को एक दूसरे से अलग करने की गरज से वो जगह खाली करा ली गई जहां से आप और आपके साथी अखबार निकालने की सोच रहे थे। जल्द ही महात्मा गांधी की शख्सियत से मुतासिर एक साहिबा उम्मतुल इस्लाम ने हयातुल्ला अंसारी को अखबार निकालने के लिए बम्बई बुलाया। उम्मतुल इस्लाम की दावत पर मुंबई पहुंचने से जहां आपका महात्मा गांधी के उसूलों से करीबी राब्ता पैदा हुआ, वहीं आपका तारुफ फिल्मी दुनिया से भी हुआ। आपको फिल्में अवाम तक पैगाम पहुंचाने का जबरदस्त जरिया लगी और इसीलिए आपने कम्युनिज्म और सोशलिज्म का पैगाम दूर दूर तक फैलाने के लिए 1946 में फिल्म नीचा नगर लिखी, जिसे रशीद अनवर ने प्रोड्यूस किया और चेतन आनंद ने डायरेक्ट। इस फिल्म ने खुलकर अमीरों के हाथों गरीबों के इस्तेहसाल की दास्तान बयान की। माली एतबार से ये फिल्म कामयाब नहीं हुई, लेकिन 8 फिल्मों में इसका शुमार आज भी किया जाता है। ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसने फ्रांस से एक बैनुल अक़वामी अवार्ड, कांस फिल्म अवार्ड हासिल किया। वो मुसलमानों के अलग सियासी जमात बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे। सियासत में मजहब के बेजा इस्तेमाल को देखकर वो उन मजहबी रहनुमाओं को जो कांग्रेस की तहरीक से इत्तेफाक नहीं रखते थे या फिर कांग्रेस से अलग रहते थे, उन्हें शिद्दत पसंदाना शक की नज़र से देखने लगे थे। हयातुल्ला अंसारी किसी भी किस्म की फ़िरका परस्ती के मुखालिफ थे। 1942 में गांधी जी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक अपने उरूज पर थी। ऐसे में आपके अखबार हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी गई। 1945 में जब तहरीक आज़ादी अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंची तो तहरीक जंगे आज़ादी फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे वक्त में इस तहरीक में मुसलमानों की शिरकत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। मैंने रफ़ी अहमद क़िदवाई से कहा है कि हफ्त रोज़ा हिंदुस्तान को उर्दू रोज़नामे के तौर पर निकालने का बंदोबस्त करें। पंडित जी, क्योंकि हिंदी रोजनामा हिंदुस्तान दिल्ली से शाया हो रहा है, ऐसे में ये मुनासिब नहीं है कि मुल्क में हिंदी हिंदुस्तान और उर्दू हिंदुस्तान की शनाख्त बने। बात तो मुनासिब है, तो फिर उर्दू रोज़नामे का कोई नाम तजवीज़ कीजिए। कौमी आवाज, आपके अंग्रेजी रोजनामे नेशनल हेरल्ड का उर्दू में तर्जुमा है। तो फिर कौमी आवाज का पहला शुमारा किस दिन से निकल रहा है? इस तरह कौमी आवाज, जिसकी पेशानी पर हयातुल्ला अंसारी का नाम बहैसियत मुदीर लिखा था, 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती में लखनऊ से निकलना शुरू हुआ। कौमी आवाज के जरिए आपने उर्दू सहाफत को रोजनामे के जदीद तरीन मयारों से मुतारिफ कराया। हयातुल्ला अंसारी बाबा कौम, महात्मा गांधी की शख्सियत और ख़ासकर उनके अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से बहुत मुतासिर थे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हयातुल्ला अंसारी को तरबियत के लिए गांधी जी के आश्रम में भेजा और वहाँ जाकर हयात साहब ने गांधी जी के फ़लसफ़े को बहुत करीब से समझा। तो आपने वहाँ 21 दिन क़याम किया? बेगम, आप क्या सोचती हैं? अगर आश्रम का माहौल नासाजगार होता
तो क्या मैं एक भी दिन रह पाता? हाँ, ये तो है। बेगम, मुझे सबसे पहली चीज जिसने बहुत मुतासिर किया, आश्रम में हर मजहब का मानने वाला आता है, और यही नहीं, हर मजहब के मुताबिक उसे इबादत का हक हासिल है और हर किस्म की सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। अरे वाह, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं वहां जाऊं। जरूर जरूर जाइए। दूसरी बार जब हयातुल्लाह अंसारी वारधा आश्रम गए तो आपकी अहलिया बेगम सुल्ताना हयात भी आपके साथ थीं। इस बार आपने वहाँ 21 दिन क़याम किया। आपका कलम बुनियादी तौर पर सियासी रंग समेटे हुए था, इसलिए आपकी कहानियों और नॉवेलों में भी इस रंग की भरपूर बौछार मिलती है। 2500 सफ़ात और 5 जिल्दों पर मुश्तमिल आपका तवील नावल लहू के फूल उर्दू का पहला सहाफ़ती नावल है। इस नावल में आपने बड़ी कामयाबी के साथ हिंदुस्तान की रंगारंग तहज़ीब और तारीख़ को समोया है। इस नावल की कहानी 1911 के आखिर में शहंशाह जॉर्ज पंजुम की ताजपोशी के साथ शुरू होती है और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के कत्ल के साथ ख़त्म होती है। नावल में जहाँ जहाँ गांधी जी का जिक्र आया है, हयातुल्लाह अंसारी ने उन्हें शहीद के लक़ब से नवाजा है। हिंदुस्तानी किस तरह से मुत्तहिद हुए, अलग हुए, उलझे और एक दूसरे से गुथे। महात्मा गांधी को बाबाए कौम का दर्जा किसने दिया? आज तारीख़ का अहम दस्तावेज़ ये ज़ख़ीम नावल उस वक्त के हालात हाज़रा का आँखों देखा हाल क़ारीन के सामने पेश करता है। क़ारीन को अंग्रेज़ हुकूमत में रूनुमा होने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली से आशना कराता है और मुल्क और मुआशरे के हालात के तय क़ारीन की सोच का रुख मोड़ता है। खानवादा-ए उलमा-ए फ़िरंगी महल दुनिया का वो तनहा ख़ानदान है जिसमें कम से कम 1000 साल से न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि नाबेग़े रोज़गार उलमा पैदा होते रहे हैं। हयातुल्लाह अंसारी ने अपनी सवाने उम्री में दर्ज किया है, मुग़ल शहंशाह अकबर का एक ख़त दस्तयाब हुआ है जो उसने मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्ग को अपनी तख्त नशीनी के 4 साल बाद लिखा था। इस बात से अंदाज़ा होता है कि आपका ख़ानदान मजहबी उलूम का गहवारा था। आपकी पैदाइश इस ख़ानदान में 1 मई 1901 को मोहल्ला फ़िरंगी महल लखनऊ में हुई। आपकी वालदा सायरा बानो मोहान के एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। मेरी वालिदा की किताबों में अल्फाज के पर्चे, खातून के पर्चे, अवध पंच के चंद नंबर महफूज थे। आप 4 साल के थे कि आपके सर से वालिद का साया उठ गया था। आपके वालिद मौलवी वहीदुल्लाह अंसारी राजा साहब गोंडा के यहाँ मौलवी थे, लिहाजा आपके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। इस वजह से आपकी परवरिश आपके दादा ने की। आपने इब्तिदाई तालीम फ़िरंगी महल की मशहूर दर्सगाह मदरसा इंतज़ामिया से हासिल की। यहाँ से सनद हासिल की, साथ ही जुबली कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की। आपकी उर्दू की बाकायदा तालीम नहीं हुई थी। उर्दू लिखना पढ़ना आपने अपनी नानी से सीखा। ये देखिए नानी जान, वैसे तो ठीक है, पर लिखाई और सुधारी जा सकती है। कोशिश करता हूँ। नानी जान, आपने लिखाई पढ़ाई किससे सीखी? घर में अपनी नानी से, और मेरी अम्मी ने? अपनी नानी के घर से। आपका बचपन इक्तिसादी बहरानी में गुजरा। 8 साल की उम्र में जब आपके सर से दादा का साया भी उठ गया
تو حالات اور بھی زیادہ ابتر ہو گئے۔ ایسے میں آپ بچوں کو قرآن اور اردو پڑھا کر کاروباری زندگی کو آگے بڑھانے لگے۔ شلجم، آپ بیٹا یہ پڑھو، یہ اس کو پڑھو پھر مجھے بتانا۔ ابھی پہلے دیکھ لو، لکھ لیا شلجم؟ آپ یہ پڑھو۔ قلم، دوات، عداوت، ستم، شرافت، کتاب، قلم، حل، اچھا خاصا عرصہ گزر گیا بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے، لیکن ابھی تک اتنی بچت نہیں ہو پائی کہ میں مسلم اورینٹل کالج علی گڑھ سے BA کر لیتا۔ تو جب آپ علی گڑھ سے مزید تعلیم حاصل کر کے واپس آئیں گے تو اپنا یہ مکان واپس لے لیں گے، یہی کہا نا آپ نے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ آپ میرے رشتہ دار ہیں، میں نے سوچا آپ سے ذکر کرنا ٹھیک رہے گا۔ آپ سے مناسب مشورے کے ساتھ ساتھ میری جائیداد بھی محفوظ رہے گی۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، تعلیم یقیناً اہمیت کی حامل ہے۔ میں آپ کا مکان لے لیتا ہوں اور آپ کو 10,000 روپے دے دیتا ہوں۔ جب آپ یہ 10,000 روپے مجھے واپس دیں گے تو میں یہ مکان آپ کو واپس دے دوں گا۔ مناسب رہے گا۔ گن لیجئے، پورے 10,000 ہیں۔ شکریہ، گننے کی کیا ضرورت ہے، یہ
ये कागजात। आप जब बीए करने के बाद अलीगढ़ से वापस आए और 10,000 रुपए इकट्ठा करके अपने रिश्तेदार के पास हवेली छुड़वाने के लिए गए, तो रिश्तेदार हवेली वापस करने के अपने वादे से बिल्कुल ही मुकर गया। इस तरह के और भी बहुत से तजुर्बात हयातुल्लाह अंसारी को हुए। उनकी शुरुआती जिंदगी मशक्क़त भरी गुजरी। यही वजह है कि उनकी तबीयत में सब्र और शुक्र कूट कूट कर भरा था। आप कौमी आवाज़ के मुदीर थे। 1955 में ये अखबार सख्त माली बहरान से दो चार था। 18 महीनों से आपको तनख्वाह भी नहीं मिली थी कि इसी बीच आपकी बेटी सख्त बीमार हो गई और आप उनका मुनासिब इलाज भी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से बेटी का इंतकाल हो गया। लेकिन ये दाग भी आपने सब्र के साथ झेल लिया। हयातुल्लाह अपना काम खुद करने के आदी थे। कभी किसी पे हुक्म सादिर नहीं किया करते थे। आप सब पर आसानी से भरोसा कर लिया करते थे। हॉकी खेलने और तैराकी के अलावा आपको कुछ अनोखे शौक भी थे। रस्सों के जरिए छोटे मोटे टीलों पर चढ़ना और सांप पालना। उनके मकान के ड्राइंग रूम में सांपों को रेंगते देखा जा सकता था। आप तालीम आमा के बहुत बड़े पैरोकार थे। कलमी मसरूफियात के बावजूद आपने लोगों को ख्वांदा बनाने और उनमें तालीम आम करने का बीड़ा उठाया। इस गरज से आपने लखनऊ में तालीम घर नाम से एक इदारा कायम किया। आपने तालीम बालिगां पर भी जोर दिया। पुख्ता उम्र के लोगों को उर्दू हिंदी सिखाने की गरज से उर्दू कायदा लाला तालाला और हिंदी कायदा 10 दिन में लिखा तैयार किया। जब मैं वहां टहलने गया हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। क्या बात? कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं जब से आपकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं। मैं अभी इस उम्र में क्या लिखाई पढ़ाई करें, मुझे तो ये आदमी यहाँ लेकर आया है। नहीं तो आप नहीं आते। देखो भाई, तालीम की कोई उम्र नहीं होती। तालीम तो एक जेवर है, जब चाहे इससे खुद को आरास्ता कर ले। मेरे पास 2 कायदे हैं, एक उर्दू का और एक हिंदी का, और मेरा दावा है आप किसी भी उम्र में हो, 10 रोज तक लगातार आप इसे पढ़ लेंगे तो आप प्रूफ पहचानने लगेंगे। जी जी, आप सबको बताने लगेंगे। ये लीजिए, इसे पढ़िए, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है? हाँ, तो क्या लिखा आपने? बाग में टहलने गया, इतनी देर में रानी साहिबा वहां तशरीफ ले आई। गांधीयाई तर्ज फ़िक्र के मुफक्किर हयातुल्लाह अंसारी को हुकूमत हिंद ने 4 मरतबा खैर सगाली मिशन के साथ गैर मुमालिक में भेजा। आप जिन भी मुल्कों में गए, वहाँ की आम जिंदगी का मुताला करना आपने अपना मकसद समझा। आप चाहे अमेरिका गए या ईरान, वहाँ की गंदी बस्तियों में जाकर उनका जायज़ा लेना आपने ज़रूरी समझा। हयातुल्लाह अंसारी की कंट्रीब्यूशन और काबिलियत को देखते हुए उन्हें 1952 में उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद किया गया। 1966 और 1988 में उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया गया। हयातुल्लाह अंसारी 18 फरवरी 1999 को इस दुनिया से कूच कर गए। ये उनका 28वां दिल का दौरा था जिसने उनकी जान ली। इससे पहले जब दिल के दौरे पड़े और लोग परेशान हुए तो उन्होंने कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? जब तक मेरा मिशकात
10 साल का नहीं हो जाता, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और यही हुआ भी। 17 फरवरी 1999 को आपके पोते मिशकात हयातुल्लाह 10 साल के हुए और अगले ही रोज हयात साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहाँ गए वो लोग जिनके इरादे पुख्ता थे, जिनका कलम हक की बात करता था, जो ना कभी कुर्सी के आगे झुका ना पैसे के। हयातुल्लाह अंसारी को सलाम, उनके कलम को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। टाइटल